Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. So कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे बहुत तेज ठंड भी लग रही है. सो एनीवे चिल्ड्रन 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग. देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन NTSC, NSC, JS and PRMO. सो आपको कहीं और स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सारा प्रिपरेशन यहीं हो रहा है. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग का लेक्चर 1 है. सो इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था चिल्ड्रन? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. वो कंप्लीट हो चुका, उसका रिवीजन अपन ने कर लिया था और इसके जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने कर लिए थे. तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ प्रोबेबली द सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 8 एंड उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड देन सिलेबस फिनिश हो जाएगा. ठीक है. सो बट देन नंदलेस आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 है, डेटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन. तो अपन बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, 6th में हमने पढ़ा है, 7th में हमने पढ़ा है, जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं इसके अंदर, बट देन अगेन हम लोग दोबारा से उसको अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. This is our awesome team. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. This is our Telegram channel for different classes. You're supposed to join according to your class. So, for example, this present class is of this current class is of class 8. मतलब जो ये वीडियो लेक्चर है वो क्लास 8 के लिए है. So you're supposed to join TTB08. We post the links there of the video lectures. एक आपको नोटिफिकेशन आएगा. So none of your lecture, none of your information would be missed due to that. Second, you won't have to search the video lecture, like the link would be there. You can directly tap on the link and you'll be directed to the video. Right children? So this was about it. This is why you should join Telegram. And let your friends and relatives and your siblings know about it. If they're studying from 6 to 10 standard, then ask them to join these Telegram channels, children. Clear? Next, this is our website talkingtextbooks.in, wherein you will get these packages, and after applying my code AVLIVE you will be getting 30% of discount on the packages. So the first package is the complete package which will be for 6,300. Obviously after applying my code you will get the study material and the test series and other things which are included here, right? Second package is the test package, so that will be for 2,450. See children, the video lectures and these bi-weekly quizzes are free. You're going to get the video lectures on our channel, that is YouTube channel, and these bi-weekly quizzes you're going to get on our website, obviously, right? Other than that, if you have any queries that you want to know, you want to ask, any doubt that you have regarding video lecture or regarding your mode of in what way you're going to get your study material, in how many days, or any other doubt that you have, or even if you want to give your feedback, then you can call on this number 9549041111. You can also comment it in the comment section below, or you can tell it to me on Telegram as well. Clear children? So I hope that you have understood everything. We'll soon start with our lecture after our ritual. So let's do this promise to ourselves that we are going to attend whole of the lecture, make proper notes, do the revision, and इस lecture के बाद mostly exercise 1, 2 and 3 के काफ़ी सारे questions आप लोग कर पाएंगे. वो मैं बता दूंगी end में कौन कौन से कर पाएंगे. तो वो करके and then you're supposed to submit it on the Google Classroom. Clear children? Okay, so what are the prerequisites of this lecture, particular lecture? So obviously ये सब आपने पढ़ तो रखा ही है, but then still I would say कि you must have represented the numbers on the number line. ये अपन ने देख ही रखा है. Although इससे पहले वाला चैप्टर भी अपन ने किया था, तो ग्राफ्स क्या होते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को है ना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हो, न्यूज़ देखी हो, मैगजीन्स पढ़ी हो, इंटरनेट पे ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आती है, डेटा वगैरह रहता है, ये सब कहीं ना कहीं पढ़ा देखा हो, राइट? दैट इज़ व्हाट द प्रीरिक्विजिट इज़ ऑल अबाउट. मतलब यू शुड हैव सीन जो डेटा रहता है उसको नंबर्स का या अल्फ़ाबेट की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में, एनीवेज, राइट? तो यही इसका प्रीरिक्विजिट है. एंड लर्निंग आउटकम
यही हैं जो आपको पता लगेंगे। ऑब्वियसली जो टर्म्स यूज़ होती हैं इसके अंदर वो पता लगेगी, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ ग्रुप डेटा, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर ग्राफ्स। तो ये सब चीज़ें अपने को ऑब्वियसली इस लेक्चर के अंदर समझ आएगी। ठीक चिल्ड्रन, सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ बेसिकली डेटा हैंडलिंग एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड इज, देखो बहुत सारा डेटा जो है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा ड्यू टू एनी रीज़न। मान लो कि मुझे एक मोबाइल कंपनी ओपन करनी है या आपको एक मोबाइल कंपनी ओपन करनी है। अब लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उनसे आप पूछोगे अलग अलग सिटीज़ में जा कर के कि यू वांट टू मेक द बेस्ट मोबाइल फ़ोन और जो यूज़र फ्रेंडली हो, किस उसको आप केटर करना चाहते हैं, टारगेट क्या है आपका, टारगेट लोग कौन से हैं, फॉर यूथ के लिए आप लोग करना चाहते हैं और मिडिल एज पीपल और जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए ऑब्वियसली पिक्चर्स हों, जो टेक्स्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े हों, या इट कुड स्पीक बाय इटसेल्फ, या इस तरह के कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उस बेसिस पे आप एक पहले लाइक यू गोइंग टू गो सर्वे, आप लोगों से जाकर के पूछोगे कि उनकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और उस तरह से आप उसको मॉडिफाई करोगे, राइट। तो पॉइंट ये है कि अब हमारे पास बहुत सारा डेटा आता जा रहा है, सबकी जो भी नॉलेज है या जो भी आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट है, सॉरी नॉट नॉलेज, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आप जॉट डाउन कर रहे हो, सब चीज़ नंबर्स ये वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं जब तक कि आप उसको पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो, देन यू एनालाइज इट एंड देन यू पुट इट टू वर्क, राइट। फिर वो आपके काम का है, देन यू कैन बिल्ड योर मोबाइल फ़ोन इन सच अ वे, या जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वट एवर इट इज़, राइट। तो वो उस बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे जो आपने कलेक्ट किया था, वो फिर आप फाइनल प्रोडक्ट उस तरह से बना पाओगे, राइट। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ डेटा, राइट। डेटा हैंडलिंग मतलब बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि जो बहुत सारा डेटा नंबर्स की फॉर्म में या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में या जैसे भी हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, अब वो सिर्फ डेटा हमारे कुछ काम का नहीं, अनटिल अनलेस कि हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके और उसे यूज़ कर पाएँ, राइट। सो दिस हियर यू कैन सी दिस इज़ ऑल द डेटा, दिस पर्सन ही इज़ कलेक्टिंग ऑल द डेटा, देन दैट इज़ प्रोसेस्ड, राइट। मतलब समझा जाता है कि कौन सा डेटा किधर जाना है, किधर क्या काम आएगा, राइट। उन सब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपरली एंड देन it is used, it is like it becomes useful for us, for many people to use it, ठीक है, for different purposes, जो भी उनके purpose है उसके लिए। So that is how data handling works. Now see, data is what, जब हम alphabet की form में, these are facts and figures and information that we get children in the form of figures, in the form of numbers, in the form of alphabets, whatever it is, but the information and the facts that we get, these are known as data. See, the word data means information or set of given facts in numerical figures. Generally हम लोग numerical figures में ही deal करते हैं, भाई numbers लिए हैं और उनको हमें represent करना है, right? Statistics, it is defined as the science of collection, representation or presentation, analysis and interpretation of numerical data. मतलब कोई भी data है उसको ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है, कि सामने वाले को भी समझ आना चाहिए, एंड देन यू आर एबल टू यूज इट, ऑल दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द साइंस। क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज कॉपी इट डाउन। राइट, नेक्स्ट डेटा, जो अभी अपन ने इंफॉर्मेशन पढ़ी कि भाई अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच गिव सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, राइट। अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है चिल्ड्रन, जो आप डायरेक्ट बेसिस पे आप कलेक्ट कर रहे हो, मतलब थ्रू सर्वेज, राइट, आप सर्वे करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, इंटरव्यूज, डायरेक्ट इंटरव्यूज ले रहे हो लोगों के, उनसे पूछ रहे हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, राइट। ये जो तरीके हैं, या खुद से एक्सपेरिमेंट्स करना, राइट, खुद से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर उसका आप जो रिजल्ट है वो निकाल रहे हो, राइट। सो दीज आर व्हाट, ये फर्स्ट हैंड है, ये प्राइमरी डेटा है, मतलब आप डायरेक्टली सोर्स से उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, राइट, यू आर टेकिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, फिर आप अपने यूज़ के लिए उसे कर रहे हो, जो भी काम है। दीज आर प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है चिल्ड्रन, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है,
ऑलरेडी किसी ने उसको प्रोसेस कर रखा है एंड देन यू आर यूजिंग इट, है ना, विच इज़ दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी डेटा। मतलब आप डायरेक्टली सोर्स से नहीं ले रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, ऑलरेडी उन सब डेटा को किसी ने ले रखा है एंड यू जस्ट यूजिंग। जैसे प्रिंटेड जो मटेरियल रहता है, बुक्स हुई, मैगजीन्स हुआ, लाइब्रेरी में इतना इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स हुआ, इंटरनेट ब्लॉग्स जो रहते हैं वो, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये सारा इन्फॉर्मेशन है, राइट, एंड आप उसको वहाँ से उठा करके एंड यू आर यूजिंग इट, राइट, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा। तो अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करूँ तो प्राइमरी डेटा में क्या क्या आ सकता है? सी, डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और विद द हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, राइट। जो स्टैटिस्टिकल वर्क जो कर रहा है, मतलब द पर्सन हु वांट्स ऑल दैट डेटा, वो खुद कर रहा है या अपने वर्कर्स से करवा रहा है। सो इसके अंदर डेटा बाय फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस या फिर सर्वेज हुए, ठीक है, या इंटरव्यूज, राइट, दीज आर ऑल व्हाट, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब चिल्ड्रन क्या है? These all are ways by which you can collect the primary data. ये वो ways हैं through which you can collect the primary data directly from the source. Then data which are already collected by a person or a society and these may be in published or unpublished sources are known as secondary data. So how can you collect these secondary data, children? Through magazines, newspapers, internet, library, journals. These are all what? Through which you can collect the secondary data, right? यहाँ से आप लोग secondary data collect कर सकते हो, ठीक है? Please write it down, children. ठीक, नेक्स्ट रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब व्हेन द डेटा इज कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म, आपने कलेक्ट किया सोर्सेज से, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, यू जस्ट कलेक्टेड इट, इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड राइट नाउ, इट हैज़ नॉट येट बिन प्रोसेस्ड, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, कुछ एनालाइज नहीं किया उसके अंदर, दैट इज नोन एज रॉ डेटा और क्रूड डेटा। बस आ गया डेटा, आपके पास आ गया, आपको पता नहीं उसका क्या, मतलब एज इन यू नो, बट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, that is what I am saying, right? So when the data is compiled in the same form and order in which it is collected, जैसा जैसा आया आपके पास वैसा वैसा बस वो अभी रखा हुआ है, right? Then that is known as raw data. It is also called crude data. अब raw data जो है उसे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो alphabetical order में, right? या descending order में। So the raw data when put in ascending or descending order of magnitude is called an array or arranged data, right? जो उसका magnitude है उस फॉर्म में, magnitude के फॉर्म में या तो ascending या descending फॉर्म में, we all know very well कि ascending descending क्या होता है, magnitude क्या होता है। तो when it is arranged in ascending or descending order, then it is known as an array or arranged data, right? It is known as an array और अरेंज डेटा। दिस इज द फॉर्म, यू नो इट वेरी वेल, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चंस, अ बिट ऑफ क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है चिल्ड्रन? ऑब्जर्वेशन का वो नहीं आया यहाँ पर। सो एवरी आइटम in an experiment, आप ये कह लो, in an experiment
या सेट ऑफ डेटा कर लो. इन अ सेट ऑफ डेटा every item in a group of data is known as observations. raw data जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपने यूज कर लिया, दैट इज नोन एज द रॉ डेटा, क्रूड डेटा. फ्रीक्वेंसी दिस वी हैवंट स्टडीड येट, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे इसको, है ना, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ओके, व्हाट डज इट सेज? The final marks in mathematics of 30 students are as follows. Arrange these marks in the ascending order, 30 to 39 one group, 40 to 49 second group, etc. Right? So आपको क्या करना है चिल्ड्रन? 30 से 39 का एक ग्रुप बना करके इसके अंदर सारे अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में. देन 40 से 49 के बीच में सारे अरेंज कर दो. ठीक है, दिस यू कैन डू इट वेरी वेल. अब ये हम क्लास फर्स्ट सेकंड से करते हुए आ रहे हैं. असेंडिंग, इन सबको असेंडिंग फॉर्म में लिखना, तो ये तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं. राइट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ व्हाट डज इट सेज? व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर हियर चिल्ड्रन? ऑब्वियसली 100. देन व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर हियर? 4 इज देयर, 3 इज देयर, आई गेस इट इज 37. राइट, इट इज 37 विच इज द लोएस्ट स्कोर हियर. इससे छोटा नहीं है कोई भी, सो इट इज 37. रेंज का क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, रेंज वी हैवंट स्टडीड येट. इफ 40 इज द पास मार्क्स, हाउ मेनी हैव फेल्ड? यानी 40 जिसके आए वो तो ठीक है, बट हाउ मेनी हैव फेल्ड, यानी कि 40 से कम कितने बच्चों के आए? सो इट इज, आई गेस दिस इज 37 एंड yes 39. So there are only 2 students, I guess. There are only 2 students who have failed. There are only 2 students who have failed, children, क्योंकि उनके 40 से कम मार्क्स आए हैं, और कोई भी नहीं ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट, the weights of newborn babies in kg in a hospital on a particular day are as follows. Now this says arrange them in the descending order. Rearrange the weights in descending order. This you can do by your own, you can do that. Determine the highest weight. Which is the highest weight here? 2.3. Then 3 is there, 3.1 is also there. So 3.1 I guess is the highest weight here. 3.1, it is given in kg, so 3.1 kg. Determine the lowest weight. Lowest weight is, guess 2.1 is the lowest weight. 2.1 is the lowest weight, 2.1 kg. Determine the range, we are not going to do it. How many babies were born on that day? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So children, 15 babies. तो अपन ने इससे क्या किया? See, a set of data is given to me. मुझे कुछ डेटा है, पर्टिकुलर डेटा जो है वो गिवन है. अब उस पे बेस्ड आई डिड क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर्स दिए. दिस इज व्हाट डेटा डज. राइट, डेटा हमें मिला, उसके बेसिस पे हमारे कुछ जो क्वेश्चंस थे, राइट, उन सब के आंसर्स मिले. क्लियर है? दिस इज व्हाट डेटा डज. दिस इज हाउ डेटा हेल्प्स अस, राइट, इन डिटरमाइनिंग मेनी थिंग्स. नेक्स्ट, now this says identify the primary and secondary data types. अब इसमें अपने को देखना है कि primary कौन सा है, secondary कौन सा है. So journals, they are already printed, so they are secondary data. Then web pages are also secondary data. Questionnaires are primary data, right? Questionnaires are primary data because the person is doing by himself. Then blogs are already written, secondary data. Surveys is primary. Observations is also primary. Experiments is also primary. Then books is secondary. Focus groups is again primary. Articles secondary. And interviews is primary. See, journals, web pages already written, blogs लिखे हुए हैं, books and
articles, these all are already written there. That is why these are what? Secondary data types. Primary है questionnaires, surveys, observations, experiments and focus groups and interviews. Clear? You can write these excuse me you can write these examples in that on that page as well, children. यहाँ पर excuse me नेक्स्ट, तो ये हमने कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एम आई विजिबल चिल्ड्रन? आई वांट टू नो दिस. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन? जब भी कोई, ओके गुड मैं स्वयं को देख पा रही हूँ, ये अच्छी बात है. ठीक है. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन? जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा गिवन है, ग्रुप ऑफ डेटा जो मुझे गिवन है, अब उसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर वो रिपीट हो रही है, राइट, देन दैट इज नोन एज व्हाट, और जितनी टाइम रिपीट हो रही है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चंद एग्जाम्पल देती हूँ आपको. सो सी, this is a given data to me. See, number of computers in 12 families in a locality. ठीक है, दिस इज गिवन. अब ये एक इंफॉर्मेशन है कि 12 फैमिलीज में, एक लोकेलिटी में 12 फैमिलीज में कितने कंप्यूटर्स हैं हर एक के पास. सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू मी, दैट इज 1 1 2 3 2 1 4 3 2 2 1 and 1, राइट. तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है इसके अंदर? देखो, मेरा जो डेटा गिवन है, व्हाट इज दैट? मुझे एक तो क्या है मेरे पास, देखो, एक तो ये है कि किन्हीं फैमिलीज़ के पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 है, कुछ है जिनके पास 3 है और कुछ है जिनके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, राइट. अब 1 कंप्यूटर कितनी फैमिलीज़ के पास है? हाउ मेनी फैमिलीज़ आर देयर विच आर हैविंग 1 कंप्यूटर ओनली? सो इट इज़ 1 2 3 4 and 5, राइट. सो देयर आर 5 फैमिलीज़, राइट. अब मैं ऐसा नहीं कर सकती चिल्ड्रन कि 1 1 1 10 टाइम्स हो रहा है तो 1 1 1 1 1 10 टाइम्स लेके जा रही हूँ. व्हाट इज द यूज? एंड आई विल सिंपली राइट इट लाइक दिस कि मैं उसको बोल दूंगी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, लाइक दीज आर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है. मतलब अगर एक कंप्यूटर है तो रिपीट कितनी बार हो रहा है? 5 टाइम्स हो रहा है. मतलब 5 फैमिलीज के बाद पास कितने हैं? एक कंप्यूटर है. 2 की बात करूँ मैं तो 1 2 3 4. सो देर आर 4 फैमिलीज विच हैव 2 कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं. दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज. नाउ इफ द डेटा इज लार्ज एंड नॉट क्लासिफाइड इन ग्रुप्स, देन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन वी यूज टैली मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस इज व्हाट वी यूज. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी तो समझ गए. The number of times any particular observation is being repeated in the given data, right? That is known as what? Frequency. अब यहाँ पे हमने देख लिया कि frequency क्या है. These are the ungrouped frequency distribution, right? ये ungrouped है क्योंकि यहाँ पे grouping नहीं हो रही है, right? बस ऐसे raw data given है, उसमें मैंने frequency देख ली. अब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए, मतलब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर है उसको डिनोट करने के लिए वी यूज टैली मार्क्स, राइट. सो व्हाट इज टैली मार्क? टैली मार्क इज समथिंग लाइक दिस. सी, दिस इज व्हाट अ टैली मार्क लुक लाइक, राइट. दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, राइट, अ स्टैंडिंग लाइन विच वी यूज टू डिनोट द नंबर, राइट. इट इज अ स्टैंडिंग लाइन दैट वी यूज टू डिनोट अ नंबर. तो अब उसमें जैसे देखो 12 है, मार्क्स ऑब्टेन, टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी. पॉइंट ये है चिल्ड्रन, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है
इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं देखो मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो अब इसके अंदर क्या एक्सप्लेन हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु हैज ऑब्टेन्ड हाउ मेनी मार्क्स, 12 मार्क्स, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 12 मार्क्स, दैट इज 1, राइट। देन देयर आर लाइक 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 2 स्टूडेंट्स के। देन 17 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 3 के। 19 मार्क्स कितने आए, 5 के। 21 3 के, ठीक है। तो अब ये तो फ्रीक्वेंसी हमने लिख ही दी है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी होती है, पर पॉइंट ये है कि हम उसको टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्यों? इट लुक्स गुड, राइट, इट लुक्स गुड एंड इट इज मोर लाइक इट लुक्स गुड ये एंड इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट, थोड़ा ईजी हो जाता है समझने के लिए। अदरवाइज नंबर्स देख रहे हैं, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में इट लुक्स गुड, है ना। सो दैट इज द पॉइंट। तो अब ये समझ गए आप लोग कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि नंबर ऑफ टाइम्स एक ही डेटा मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, राइट। अब उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ और उस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए मैं टैली मार्क्स का यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो मैंने यही समझा है कि 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक बच्चे का आया, वो लिख दिया। 15 कितने के आए, 2 के आए। 17 3 के। अब उनका जो रिप्रेजेंटेशन है टैली मार्क में वो अपन देखते हैं कि 1 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, थ्रू अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। देन 2 को कितने से रिप्रेजेंट किया, 2 स्टैंडिंग लाइन से। 3 को 3 स्टैंडिंग लाइन से। 5 को 4 स्टैंडिंग लाइन्स एंड अ डैश। 3 को अगेन 3 स्टैंडिंग लाइन से, 4 एंड 2, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये किस तरह से हम लोग करते हैं, लेट्स सी दिस। सी, अगर मुझे 1 फ्रीक्वेंसी को, जैसे लेट मी राइट इट लाइक दिस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट आई एम राइटिंग हियर एंड दिस इज द टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। दिस इज द टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। सो if I want to represent 1, I'll represent it through a single straight line. If I want to represent 2, then I'll represent it through 2 straight lines. 3, then 1 2 3, then 4, then 1 2 3 4. If I want to represent 5, then it is going to look like this, 1 2 3 4, and there won't be a 5th straight line. हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा कट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, कट कर रखा है इस तरह से, तो ये 5th हो गया, ठीक है। अब 6 करना है, तो 6 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 अगेन। 7 करना है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 8 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर मुझे 17 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. This is how you are going to represent it, ठीक है। This is how we do this. Copy it down children. फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से करेंगे। ठीक, तो जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था उसी को ही हम टैली मार्क में करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सो व्हाट वाज गिवन टू मी, फ्रीक्वेंसी वाज 1 1, देन 2 3 2 1 4 3 2 2 1 एंड 1, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड टैली मार्क, right? In a table form I am going to represent it, obviously. So number of computers, if it is 1, number of computers are 1, उसका frequency कितना है, 1 2 3 4 and 5. So how am I going to represent it, 1 2 3 4 and 5 in the tally mark representation. Then it's 2.
So how many there are 2? 1, 2, 3, 4. So it is 1, 2, 3, 4. 4 standing lines. 3. So it is 1 and 2. 2 only. So 2 straight lines. Then 4 is 1. 1 straight line. ठीक है? It is a straight line. This is how we represent this. Clear? Next, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर डेटा बहुत सारा है, बहुत ही सारा, लाइक दिस वाज जस्ट these many observations that we had, but if we have more data, more number of observation, then we cannot keep on writing this, children. Then हम लोग क्या करते हैं, उसको representation easy बनाने के लिए we make it into groups, right? हम लोग grouping कर देते हैं उसकी, और उस group data में हम लोग ये डाल देते हैं कि भाई इस group से इस group के बीच में कितने numbers आ रहे हैं, उसकी frequency क्या है, ये सब अपन लोग लिख देते हैं, है ना. तो इस तरह से we represent that data. Don't worry, we are obviously going to do that. So when the list of observation is long, the data is usually organized into groups called class intervals. तो अब उनको हम क्या बोलते हैं, जो grouping हम लोग बना रहे हैं, usually organized into groups called class intervals. तो हम उसको क्या बोलते हैं, class intervals बोलते हैं, जो group हम लोग बना रहे हैं. And the data so obtained is called a group data. समझ गए, जो data उससे मिलता है that is known as the group data. अब जो ग्रुपिंग, जो क्लास इंटरवल हम लोग बना रहे हैं, उसमें एक अपर लिमिट होता है एक लोअर लिमिट होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ग्रुपिंग करी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. सो पॉइंट इज कि जब मैंने ये ग्रुपिंग बनाई तो 0 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स मेरे डेटा के अंदर आ रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे 0 से 5 के ग्रुप में. जो 5 से 10 का ग्रुप है उसके अंदर बाकी के जो 5 से 10 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे. 10 to 15 वाले 10 to 15 के बीच में आ जाएंगे. 15 to 20 वाले 15 to 20 के अंदर आ जाएंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये सब इसके बीच में आ जाएंगे. दिस इज व्हाट ग्रुप मीन्स. लाइक दिस इज व्हाट द क्लास इंटरवल मीन्स. मतलब ये हमने क्या बनाया है, क्लास इंटरवल बनाया है. क्लियर? अब इस क्लास इंटरवल के अंदर चिल्ड्रन हर एक क्लास इंटरवल में एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है. एग्जाम्पल जैसे मैं लेती हूँ, मैंने लिया 10 से 15 का जो ग्रुप है वो. ठीक है, अब इस 10 से 15 के ग्रुप में 15 विल बी द अपर लिमिट, राइट, एंड 10 विल बी द लोअर लिमिट. ठीक है. सिमिलरली मान लो मैंने 15 से 20 वाला लिया. ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑब्वियसली 20 इज द अपर लिमिट एंड 15 इज द लोअर लिमिट. ये अपर लिमिट है यानी कि यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ तक इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, मतलब इससे कम 19 तक आ सकता है, और मिनिमम 15 आ सकता है. 14 कैन नॉट कम इन दिस, राइट. मीन्स 15 से लेकर के 19 तक में सब कुछ इसमें आ जाएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दिस इज व्हाट इट सेज. द लोअर value of a class interval is called its lower limit and the upper value of a class interval is called its upper limit. The size or the width of the class interval is what? The difference between the upper and the lower class limit is called the size or width of the class interval. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मुझे इसका निकालना है अगर क्लास इंटरवल, तो 20 माइनस 15 इज व्हाट? 5. मुझे निकालना है इसका 0 to 5. 0 to 5 जो मेरा क्लास इंटरवल है, तो मैं इसका साइज या विड्थ कैसे निकाल सकती हूँ? 5 माइनस 0 दैट इज 5, राइट. दैट इज व्हाट साइज और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज. ठीक है, विड्थ बोल लो या क्लास इंटरवल बोल लो, साइज बोल लो. ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल. देन इज क्लास मार्क. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लास मार्क क्या होता है, देन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज कॉल्ड upper limit plus lower limit divided by 2 means the average of the upper and the lower limit, that is known as the class mark. For example, if I want to take out of this 10 and 15, so what I'll do, 15 plus 10 divided by 2.
that is going to be 25 by 2, that is 12.5 will be the class mark, will be the class mark of this class interval, that is 10 to 15. Clear? Clear, children? So this is what class mark, class interval, size or width, upper limit, lower limit and grouped frequency is all about. Please write it down. ठीक है? Next. Okay. So this is how it looks like. Obviously we are going to do a question, don't worry about that. So construction of group frequency distribution means, see, mass is given to me. अब group क्या है? This is the group which is given to me. मतलब 41 से 49 kg के बीच में कितने bags आ रहे हैं? मान लो there are bags of rice kept. ठीक है? Rice के अलग अलग bags kept हैं. Obviously. अब उनका weight क्या है? 41 से 49 kg तक के कितने bags हैं? How many bags are there which are from 41 to 49 kg? There are 3 bags. Clear? Then अब वो चाहे 42 हो, 45 हो, 47 हो, 48 point whatever या 49 हो, right? They are going to come in this frequency. मतलब 3 frequency आपने लिख दी. You need not write कि वो 3 like उनके तीनों के वो क्या हैं, weight क्या है, right? They just want कि 41 से 49 के बीच में कितने हैं, just write that down. Then 50 to 58 kg के बीच में कितने राइस के पैकेट्स हैं? 6. Beat anything, 51, 52, 53, 54, 55 और 52, 53, 55, 56, 58, whatever. ठीक है, but then it should come between this 50 to 58 kg वहाँ लिख दिया. टैली मार्क आपको पता ही है कि किस तरह से करना है. This is not straight line children, ये इस तरह से नहीं होगा. This is not how it is going to be. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Right? This is how it is going to be. Not like this. Not slanting. Straight line and then a cut like this. Right? 77 से 85 के बीच में कितने bags हैं? So we have 2 bags here. Clear? Total frequency की निकाल ली अपन ने. So this is what construction of group frequency distribution table looks like. We are going to do a question on this. Just write it down. Okay, let's do this question now. Okay, so here this says, question is, given below are the marks out of 50 obtained by 30 students in examinations. Given below are marks of 30 students, given below are marks out of 50 of 30 students in an examination, obviously. So what does it says? Taking class interval as 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and so on. Construct a
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल. अब मुझे क्या क्या गिवन है, जो नंबर्स हैं वो क्या क्या गिवन है, लेट मी राइट इट. Let me see. So here what is given to me, that is, let me write it with a different pen. So this is 43, 19, 25, 43, 19, 25, 32, 48, 32, 48, then it is 17, 29, 17, 29, 9, 15 and 50, 9, 15 and 50, then it is 7, 24, 20, 7, 24, 20, 37, 44, 37, 44, 22, 2, 50, 27, 25, 18, 42, 16, 1, 33, 25, 35, 45, 35 and 28. 25, 35, 45, 35 and 28. So let's do it. Let's construct a frequency table. So यहाँ पे I'm going to write the group. ठीक है, तो marks obtained, that is out of 50, and here this is frequency या tally mark, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, let's draw it then. अब ग्रुपिंग क्या होगी चिल्ड्रन, ग्रुपिंग क्या है, वो ऑलरेडी उन्होंने गिवन, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. द ग्रुप्स दैट वी आर सपोज टू मेक इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1 to 10, then 11 to 20, then 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नो, क्योंकि लास्ट कहाँ तक है, 50 तक ही है, तो इससे ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं. तो अब लेट्स फाइंड इट आउट. 1 से लेकर 10 तक में कितने हैं चिल्ड्रन? 1 से लेकर 10 तक इज 9, देन 7, 2, 1, बस इतने ही हैं. सिंगल डिजिट नंबर्स आर एंड 10 एज वेल. 10 भी हमें इसी में इंक्लूड करना है. सो डू वी हैव 10 हियर? No, we don't. So it is 1, 2, 3, 4. So I'll mention it like this: 1, 2, 3, 4. Next 11 से 20 तक में. So this is going to come. Let me mark it with a different color ताकि हमें याद रहे. So it is 19, then 17 as well. 15 भी आएगा इसके अंदर. Then 18 again. 16 is going to come. 20 will also come here, and that's it, right? So then this is 1, 2, 3, then 4, 5 and 6, right? 6. Let's 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then with black. अब 21 से 30. 21 से 30 में this is going to come, this won't come. 21 से 30, this is going to come, this will come, this is also going to come. 27, 25, 25 again, 28. Is there 30? 30 है यहाँ पर, 30 is not there, 30 is not there. Fine. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 are there. Then next 31. क्या बचा? Yellow. Fine. So 31 से 40. This is going to come. This is going to come. 31 से 40. 1, 2. And this is going to come and this is also going to come. Right, 31 से 40 तक में तो कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब लास्ट 41 से 50 तो 1, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 remaining. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. So this is how we represent the table. Clear children? I hope कि कुछ बचा नहीं इसके अंदर. Please copy it down. ठीक. टोटल काउंट कर लो अब इसको. टोटल 30 स्टूडेंट्स का मेरे पास लिस्ट था. लाइक एड दीज कितने हो जाएंगे? दिस इज 30. टोटल 30 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा आ गया. क्लियर? दिस इज व्हाट इट इज. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. बाकी की चीज़ें हम बार ग्राफ वगैरह ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.